مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے پاکستان کو دو ٹوک جواب دیا ہے۔ مختار عباس نقوی نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں مسلمان کافی خوش ہیں۔ مختار عباس نقوی نے مزید کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون میں حب الوطنی ہے، اس لیے وہ اپنے اقلیتوں کو انصاف دینے کی فکر کرے۔ دیکھیں، ہندوستان کے الپ سنکھیک یا مسلمانوں کے ادھیکاروں کی کسی کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہتاش اور نراش پاکستان آج جو ہے وہ پوری دنیا میں الگ تھلگ بھی پڑا ہے، ایک آئسولیٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بدنام کرو۔ لیکن ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رگوں میں راشٹر بھکتی کا خون ہے، راشٹرواد کا خون ہے۔ جب القاعدہ IS جیسے دنیا میں اپنی جڑیں جما رہے تھے تو ہندوستان میں وہ سفل نہیں ہو پائے، ہندوستان میں ان کو شکست ملی، وہ پراست ہوئے۔ وہ اس لیے پراست ہوئے کہ ہندوستان کا ہر ناگرک، ہندوستان کے ہر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی شیطانی آتنکوادی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج جو پاکستان میں آپ الپ سنکھیکوں کی بات دور ہے، جو پاکستان میں جو لوگ بٹوارے کے وقت ہندوستان کے مسلمان وہاں گئے تھے، آج بھی ان کو جو ہے وہ سمان کے ساتھ ناگرک نہیں کہا جاتا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے آج اہم فیصلہ سناتے ہوئے 15 دنوں کے اندر وقف بورڈ تشکیل دینے کی ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف کی عرضداشت پر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے لیے الیکشن ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن نہ سابقہ حکومت اور نہ ہی موجودہ حکومت نے وقف بورڈ کی تشکیل کے لیے قدم اٹھائے۔ اس مسئلے کو لے کر کرناٹک وقف بورڈ کے سابق چیئرمین اور موجودہ رکن ڈاکٹر محمد یوسف ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ عدالت نے فوری طور پر وقف بورڈ تشکیل دینے کے لیے ریاست کے چیف سیکرٹری، محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری کو نوٹس جاری کی ہے۔ ایودھیا تنازع معاملے میں سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کی طرف سے بحث کا عمل 18 اکتوبر تک ختم ہو جانے کی امید ظاہر کی، اس لیے اب امکان ہے کہ فیصلہ نومبر میں آ جائے۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس رنجن گگوئی اسی سال 17 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اب اس معاملے میں سماعت کے ساتھ ثالثی کو بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایودھیا تنازع کی سماعت 18 اکتوبر تک ختم ہو جانے کی امید، فیصلہ نومبر میں آنے کا امکان، سماعت کے ساتھ چلتی رہے گی ثالثی۔ ایودھیا تنازع پر سپریم کورٹ میں روزانہ سماعت جاری ہے، اور آج چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی والی 5 رکنی آئینی بینچ نے فریقین کے لیے یہ راستہ بھی کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ثالثی کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس گگوئی کے اس بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس معاملے پر اب سماعت اور ثالثی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ دراصل کچھ مسلم اور ہندو فریق نے ایودھیا معاملے میں ایک بار پھر ثالثی کا عمل شروع کرنے کی درخواست کی تھی، اور بدھ کے روز چیف جسٹس رنجن گگوئی نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جسٹس FM کلیف اللہ کو سنی وقف بورڈ اور نروانی اکھاڑے کی جانب سے ثالثی کو دوبارہ شروع کرنے سے متعلق خط کا ذکر بھی کیا۔ واضح ہے کہ کلیف اللہ نے ایودھیا معاملے میں ثالثی کے لیے مقرر 6 رکنی پینل کی قیادت کی تھی۔ آئینی بینچ نے کہا کہ اراضی تنازع کا حل نکالنے کے لیے روزانہ سماعت کی کارروائی بہت آگے پہنچ گئی ہے اور یہ جاری رہے گی۔ حالانکہ عدالت نے کہا کہ جسٹس کلیف اللہ کی قیادت میں ثالثی کا عمل اب بھی جاری رہ سکتا ہے اور اس کی کارروائی خفیہ رکھی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں کارروائی کے دوران 5 رکنی آئینی بینچ نے یہ بھی بتایا کہ 18 اکتوبر تک دونوں فریق کے ذریعے بحث تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ چونکہ ہندو فریق کے دلائل سنے جا چکے ہیں اور اب مسلم فریق کے وکیل اپنی بات رکھ رہے ہیں، اس لیے قوی امکان ہے کہ اکتوبر ماہ میں سماعت مکمل ہو جائے۔ یعنی اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ بابری مسجد رام مندر اراضی تنازع سے متعلق فیصلہ نومبر سے پہلے آ سکتا ہے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے اس طرح کا اشارہ دیا ہے۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس رنجن گگوئی اسی سال 17 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
जमीयत उल-उलमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी बाबरी मस्जिद की सौदेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ में जमीयत उल-उलमा के रियासती सदर मौलाना मतीन उल हक कासमी ने वाज़ेह किया कि एक ऐसे मौके पर जब बाबरी मस्जिद का तारीखी मुकदमा तकरीबन आखिरी मरहले में है, वक्फ बोर्ड की जानिब से पैरवी करने वाले वकला को हटाने से वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि जफर फारूकी या तो किसी प्रेशर में हैं या वो बाबरी मस्जिद का सौदा कर रहे हैं। जमीयत की बहुत अहम पेशरफ्त है और बिलखुसूस जो क़ज़िया आजकल चल रहा है उस पस मंज़र में आपकी आमद और यहाँ पर बाकायदा आवाज़ एहतजाज बुलंद करना बड़ा मानी खेज़ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ पेशरफ्त सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई है, क्या वाकई तशकीक के दायरे में है या उसका कुछ दूसरे भी पस मंज़र हो सकता है? इस वक्त जो चेयरमैन साहब ने सरगर्मियाँ दिखाई हैं, जब उसके अंदर समाअत रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी मसालहत की वो भी नाकाम हो गई, तो अब इस दरमियान उनका लेटर जाता है कि इस मसालहत का काम फिर शुरू किया जाए। जमीयत उलमा मसालहत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनके बयानात भी मुश्तबा आए हैं और उन्होंने जो वकला अभी तक पूरी तैयारी के साथ केस लड़ रहे हैं और अब बिल्कुल गवाहियों का और बहस का मामला आया है, ऐसे मौके पर कुछ बहुत अहम वकला को हटा करके ऐसे वकला को नामजद कर दिया है जिनका माजी मुश्तबा है, जिनका पहले की सरगर्मियाँ मुश्तबा हैं और जो उतनी मजबूती से केस शायद न लड़ पाएँ। तो इसलिए शुबा पैदा होता है कि क्या जानबूझकर केस बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे क़ज़िये में कहीं हुकूमत की साजिश हो सकती है या कोई ऐसे अनासिर हो सकते हैं जो वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रेशर बना रहे हों या जाती मफाद का कोई खेल हो सकता है? क्या कुछ सोचते हैं आप? मैं तो इस वक्त सोचता हूँ कि ताज़ा FIR भी उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे कोई खेल हो। हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ मफाद और खेल दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, जमीयत बहुत अहम फ़रीक़ है, बल्कि फ़रीक़ अव्वल भी आप ख़ुद को कहते रहे हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं कि मफ़ाहमत की गुंजाइश बाहर बाकी है या सिर्फ़ और सिर्फ अदालत पर मुनहसर रहेंगे? जमीयत ने मुफाहमत और मुसालहत के कभी इनकार नहीं किया, अब भी वो तैयार है अगर कोई मुसालहत की, लेकिन मुसालहत दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा नहीं होती। एक तरफ़ा जो होती है वो सौदेबाजी होती है, मुसालहत नहीं होती। मुसालहत चलती रहे, इनकार नहीं, लेकिन सौदेबाजी कबूल नहीं। सौदेबाजी कबूल नहीं है। बहुत अहम बयानात जारी कर दिए गए हैं जमीयत की तरफ से। उसामा कादरी साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं उसका इस्तकबाल किया जाता है, ताहम वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पेशरफ्त की गई है वो तशकीक के दायरे में है, ये काबिल कबूल नहीं है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। वहीं अयोध्या मामले में कानपुर के रहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुकूमत के दबाव में है। मस्जिद का मामला जो मुतनाज़ा मामला है, ये तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है, ये खालिस जो है मिल्कियत का मुकदमा है, टाइटल सूट है। और इस वक्त आप जैसा कह रहे हैं, सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी मरहले से दो चार है, बहस चल रही है, एविडेंस पे बहस चल रही है और मंदिर का दावा करने वाले पक्ष कोई भी सबूत एविडेंस पेश नहीं कर सके। यूपी में मेरठ के कैंट असेंबली हलके से रुकन असेंबली सत्य प्रकाश अग्रवाल ने असम की तर्ज पर यूपी में भी NRC लागू करने का मुतालबा किया था। सत्य प्रकाश अग्रवाल के मुताबिक उनके मुतालबे में मरकजी और यूपी हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया है। वाज़ेह के MLA सत्य प्रकाश अग्रवाल ने मेरठ शहर और जनूबी असेंबली हलके में झुग्गियों में रहने वाले गैर मकामी मुस्लिम कारीगरों का हवाला देते हुए बांग्लादेशी दरअंदाजों का जिक्र किया था और वजारत दाखिला को ख़त लिखकर यूपी में भी NRC लागू करने का मुतालबा किया था। वहीं RSS के एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने NRC की हिमायत की है। माननीय योगी जी नहीं, अमित शाह भी इसको ले रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाला है। मैं समझता हूँ इस महीने लास्ट तक और अगले महीने के पहले हफ्ते में ये NRC का यहाँ पर काम हो जाए। मेरठ के अंदर 1.25 लाख बांग्लादेशी आए हुए हैं, पूरा उठाया, उसको संज्ञान लिया गया है। माननीय मोदी जी ने संज्ञान लिया, माननीय अमित शाह जी ने संज्ञान लिया, माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी ने संज्ञान लिया और बहुत जल्दी इस पर NRC लागू हो जाएगी। जो जैसा और जगह हुआ है वहाँ 19 लाख भगाए, तो यहाँ से लोग सब जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। हमने कहा अपने हिसाब से आप नमाज पढ़ो, कुछ भी करो, सारे त्यौहार मनाओ, भाजपा कहीं आड़े नहीं आएगी। भाजपा जब आड़े आएगी अगर खाओगे यहाँ, गुर्राओ कहीं और, इसके लिए बंद। जिन भी लोगों के पास कागज नहीं है बना लेने चाहिए ताकि इस देश के सब लोग एक लीगल वैध नागरिक बन सके। इसलिए ये कोई खतरे की घंटी नहीं है, हर आदमी को पाक साफ बनाना है।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करने मेरठ पहुंचे आरएसएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहनुमा इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के लिए पाकिस्तान को कसूरवार करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल होगा। भारत सरकार ने अपनी कानून और नैतिक शक्ति के द्वारा इस अलगाववाद और बर्बादी के कानूनों को ख़त्म करके ये भी बता दिया है 78,000 वर्ग किलोमीटर पाक कब्जे में, 43,000 वर्ग किलोमीटर एक्साई चीन कब्जे में, ये उनके अवैध कब्जे में, ये भारत का है, इसलिए वो खाली करे। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से। लखनऊ अपनी तहजीबी कदरों और लिसानी रवैयों के हवाले से पूरी दुनिया में मुमताज़ शनाख्त रखता है, लेकिन वो लखनऊ जिसके नाम के साथ नज़ाकत, लताफत और आदाब व अलक़ाब के गैर मामूली तसव्वुरात उभरते थे, अब कहीं गुम हो गया है। पूरी दुनिया में मुनफरद शनाख्त हासिल करने वाली तहजीब के नुकूश अब धुंधले पड़ते जा रहे हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं तारक कमर की ये खास रिपोर्ट। रात दिन मुझसे ये शिकवा कर रहा है लखनऊ, रफ्ता रफ्ता मेरे अंदर मर रहा है लखनऊ। ये एहसास सिर्फ एक शायर या एक हसास कलमकार का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने माजी से हाल तक लखनऊ को नशीब फराज से गुजरते हुए देखा है। इस शबनम मिजाज शहर के रखरखाव और तहजीबी रवैये देखते ही देखते कहाँ मफकूद हो गए और कब मादूम हो गए, मालूम ही नहीं हुआ। मादूम हो गई है और यहाँ जो तसल्लुत है इस वक्त गैर अदबी लोगों का अदबी माहौल पर पूरा तसल्लुत हो गया है, पूरा जकड़ लिया उन्होंने यहाँ के अदबी माहौल। ऐसा अफसोस होता है कि वो लखनऊ जिसको हमने देखा था, जहाँ हमने आंखें खोली, जहाँ हमने होश संभाला, जहाँ हमारी तरबियत हुई, जहाँ हमने तालीम हासिल की, वो लखनऊ कहाँ चला गया। ये वो शहर है जहाँ तांगे और रिक्शे वालों की गुफ्तगू पर भी लोग रश्क किया करते थे। लहजे की मतानत व शाइस्तगी की मिसालें पेश की जाती थी। यहाँ की लड़ाई और नोक झोंक भी दूसरे शहरों की अदबी नशस्तों पर भारी थी, लेकिन अब शायद सब कुछ माजी की ना भूलने वाली दास्तान होकर रह गया है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके देखें तो उनके मुकाबले में, उनके तकाबुल में आपको आज भी लखनऊ बहुत बेहतर नजर आएगा उससे। इसलिए कि मैंने दिल्ली भी देखा, मैंने और दूसरे शहर देखे, कलकत्ता भी देखा, मद्रास भी गया और जब गया वहाँ लोग मुझसे बात करते हैं तो वो कहते तू कहाँ से आया, लेकिन जब हमारा लखनऊ वाला बात गुफ्तगू करता है तो कहता है आप कहाँ से तशरीफ़ लाए। आज भी बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रिक्शे वाले, हमारे ड्राइवर हमारे उस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं जो कहीं दूसरी जगह के पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। कि गुल भी लाला भी है, बेला भी चमेली इसमें, और जूही सी दुल्हन भी है नवेली इसमें, कामनी खेली है बन बन के सहेली इसमें, सारे फूलों ने बनाई है हवेली इसमें, कोई हिंदू न मुसलमान न ईसाई है, गुलशन हिंद में मिलजुल के बाहर आई है। लखनऊ की तबाही व बर्बादी की दास्तां भी दूसरे शहरों के गुम होते और मिटते तहजीबी नक़ूश की तरह है। बदलती तस्वीर पर मातम करने को जी चाहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नवाबी खानवादे और रॉयल फैमिली के लोग मानते हैं कि अगर तवलियत इनके खानवादे को वापस मिल जाए तो इस तहजीब की वापसी और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। कि जो ख़ानदान के लोग हैं, जिनका ये ट्रस्ट है, जिनके बुज़ुर्गों ने बनवाया है, उन लोगों के पार्टिसिपेशन जो है इसमें कुछ है ही नहीं। बाहर के लोग जो हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं वो किस लगाव से करेंगे और किस दिल से करेंगे। तो सबसे पहले तो वो इलेक्शंस जो हैं बहाल हों, इलेक्शंस हों और मुतवल्ली जो हैं अपने ख़ानदान के लोग बने, तब जाके हमारी समझ से कुछ ना कुछ बेहतर हालात होंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि बेशतर तारीखी शहरों का मंजरनामा इसी तरह तब्दील हुआ है। कुछ तो लोगों की गैर संजीदगी, कुछ हुकूमत की अदम तवज्जुही और कुछ बदलते हालात और तकाज़ों की मजबूरियाँ। असबाब बहुत से हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक, और वो ये कि लखनऊ माजी में खोता जा रहा है। कहा यही जाता है कि जो लोग
अपने माजी से रोशनी हासिल नहीं करते हैं, उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाया करता है। लिहाजा इस तहजीब को बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मुश्तरका तहजीब ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त है। इस शनाख्त को बरकरार रखने के लिए समाज के सभी तबकों को मिलजुल कर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। समाज में मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए हिंदी और उर्दू अदीबों को मिलकर अवामी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली हिंदी उर्दू की मुश्तरका अदबी सकाफती तकरीब में किया गया। पेश रिपोर्ट। बसे लड़े पतझारों से तुम ही चित्रों से, प्रेमों में जड़े लदे गुहारों से। मारूफ तरक्की पसंद दानिश्वर O.P. मालविया की पहली बरसी के मौके पर मुनक्किद होने वाले इस जलसे का इफ्तिताह उर्दू के मशहूर मुहक्किक प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी ने किया। हिंदी के मारूफ अदीब और दानिश्वर विभूति नारायण राय और ममता कालिया ने बतौर मेहमान खुसूसी इस जलसे में शिरकत की। जलसे में मुकर्रिरीन का कहना था मुश्तरका तहजीब ही इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है और इसको हर हाल में कायम रखा जाएगा। भारत में एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है साथ साथ जीने की। अलग अलग मत मतांतर के लोग, बहुत सारे भाषा भाषी, बहुत सारे खान पान, कपड़े लत्तों की आदतें, ये सब साथ साथ रही। तो कंपोजिट कल्चर तो एक ऐसे कल्चर की आप कल्पना करिए जिसमें सब कुछ मिला रचा बसा हो। इलाहाबाद वो शहर है कि जिसने एक पूरी इस्तिलाह दे दी गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी, गंगा भी यहाँ, जमुना भी यहाँ और संगम भी यहाँ। तो ये जो मिलवा तहजीब है, जैसे नदियाँ मिल रही हैं वैसे भाषाओं का मिलना, तहजीबों का मिलना, संस्कृतों का मिलना, ये हमारे देश की हज़ारों बरस की परंपराएं हैं। अब अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, वो थोड़ा थोड़ा अलगाव तो होता ही है। चमन में हर तरह के फूल होते हैं। इस मौके पर उर्दू और हिंदी अदब से मुताल्लिक कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। मुख्तलिफ तालीमी इदारे से वाबस्ता तलबा ने फिराक गोरखपुरी की मशहूर गज़ल अहले तरब रंजो अलम बांट रहा हूँ पेश किया, जबकि हिंदी के अवामी शायर यश मालविया ने अपनी कई मशहूर नज़मों से सामईन को महसूस किया। तुम अलबम से दबे पाँव जब बाहर आते हो। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।